हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Directive principle of universalization of education, child labor, and status of women. There is a three topics here: the universalization of education, child labor, and status of women. Literacy is a big hindrance in the achievement of the goal of the social, economic justice and welfare state. There is a universalization of education. There is the most important. The percentage of literate of people at the time of independence was only 40%. Our government realized the importance of education and laid stress on the spread of the literacies among the masses. Efforts has been made by the government to raise this a level, but is a large section of our population is still illiterate. The foremost effort which is acquired in this field is the spread of the elementary education and its universalization. Due to increasing number of drop out at the primary stage, the number of illiterate of between to 15 to 30 years of age has constantly increased. According to National Policy of Education 1986, the government has launched national literacy mission and the is the operation of blackboard. Their blackboard operation is the most important for the spread of the mass literacy at the primary stage. For those who were deprived of the benefit of education in their childhood, there is a government and many voluntary agencies are making a special effort to educate them by opening night of school and the adult literacy center. Many distance education program through the correspondence course. Distance education and open learning has been started in different states. The National Institute of Open Schooling is our Sir Open University has been set of the 10 to the goal of universalization of education. The directive principle providing to free and compulsory education for children up to the age of 14 years has been to included through the 86 Amendment Act 2002 in their list of fundamental rights under Article 21. Thoughts as much has been to the achieve, but still there is a long way to go to the accomplish this is the objective of welfare state. The next year, child labor. You have already read that one of the directive principles provide a opportunity and facility to children to develop in a healthy manner. You have also read about the fundamental right against the is the explanations of child. There is children unemployment of children below their age of 14 years in a mines and industries, which is a houses. There is a health and is a promoted. And the spread of this is a provision their desired result has not been reached in a most of their case. The parent attitude not a conducive to be eliminations of child labor. Therefore, there are children and to do some sort of the work to learn of money of the contributor to family income. The poverty and social stigma are contained or containing on the path of is the eradications of this problem. And apart from the lack of will, all efforts by government at the various level would be as a prove to the factors as the useless and the willingness and the awareness to the get rid of the social challenge is come from within. Dr. Abdul Kalam as a dream of development India 2020 can be achieved only when the children who are the future of the country are scared and the protected from to begin to exploit it. The children should not be deprived of their right to enjoy the childhood and the right of education. The next year is status of women. Indian society is basically is the male dominated society in which the father has been to the head of the family and mother is a position has been to the is a subordinated to him. The position of a woman in there such as a system is naturally weak. The woman has been to suffering a great deal on the account of curial social custom and religious is a practice like a pradha and dowry etc. Pradha and dowry is the most important. Pradha is a practice in the religious
The women and the individuals part of count of the 495.7 millions and the representative of 48.3% of country as a total population as per 2001 seems. And essentially there is a rising to the status of education of human has been stressed in our constitution through the fundamental right and the various directive principle of state policy. And they has been to the provided with their right to on adequate means of livelihood and equal play with that of man for their work. Women workers has also been provided for the health care of mandatory of relief. Even in the fundamental duties, stress has been the leader on the duty of every citizen of India to the reverence and practice is a derogatory to be dignity of women. The many law of judicials is a decision has been restored the dignity of women. To protect there is a right measuring has been to taken to give them share in the family property. For there is a emancipation from the cruelly practice like a bride bearing of dowry. The bride is a burning for a dowry and the wife beating as a sati etc. The law has been to the inculcated is a prohibitions of female infanticide and fructicides and discrimination against girl child and the child marriage are some of other measures there will help the improving the status of women. To empower the woman, the reservation of the 1/3 of seat through their 73 to 74 article amounted to the Act of 1991 and 1992 for them has been made to the panchayat and municipalities. There is a similar proposal for a reservation of seat from them and the parliamentary and in the state legislatures. दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है यही कहता है कि नीति निर्देश सिद्धांत यानी शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मजदूरी और महिला की सतर। देखिए ये तीनों जो है नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत आता है, चाहे वो शिक्षा की सार्वभौमिकता हो, बाल मजदूरी हो या महिलाओं की सतर हो। कहते हैं ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कहते हैं समाज आर्थिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधक के रूप में खड़ी हो गई है। कहते हैं अगर हम अच्छे कल्याणकारी राज्य की कल्पना करें, आर्थिक समाज और अच्छे समाज की विकसित की हम बात करें तो इसके लिए जो है शिक्षित समाज का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं शिक्षित समाज नहीं होगा तो लोग जो है फ्री के लालच दे दे के जो है देश को बर्बाद करने में अग्रसर रहेंगे और हम भी जो होंगे ऐसे ही वोट भी देते रहेंगे और लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहेंगे। तो कहते हैं लोग अपनी भलाई समझना जरूरी है, तो इसके लिए एजुकेशन भी जरूरी है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ क्लास पास करते रहें। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप एक समझदार नागरिक बनो, क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी बात लालच की है और कौन सी देश के विरुद्ध है, तो ये समझना आपका परम अधिकार बनता है। और उस पर एनालाइज करना कि क्या ये बात बताई गई सही है, उस पर आप सोचिए, विचार कीजिए, फिर अपना निर्णय लीजिए। यही पढ़े लिखे का सबसे बड़ा समझदारी का निशान होता है। और जो समझदार नहीं होते वो दूसरे के बातों पे बहुत ही आसानी से बहक जाते हैं और लालच में आ जाते हैं और गलत कर जाते हैं। मैं ये भी कहता हूँ हमेशा कि आपको जो है अपनी विवेक से सदैव कार्य करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक यही है कि शिक्षा की सार्वभौमिकता। कहते हैं पहले आपने पढ़ा है कि नीति निर्देश सिद्धांत राज्य यह निर्देश देते हैं कि संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है दबाव डाला जाए, क्योंकि बच्चे एजुकेटेड होंगे तभी देश के भविष्य जो है आगे बढ़ेगा। भारत स्वतंत्रता के समय भारत की केवल 14% आबादी शिक्षित थी। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सिर्फ 14% ही भारतीय शिक्षित थे। तभी तो कहते हैं जो पार्टीशन हुई और जो यहाँ पर दंगा फसाद हुआ इस सब में कहीं कहीं हद तक शिक्षा का भी गिरता हुआ सतर ही था, क्योंकि व्यक्ति जो थे समझदार नहीं थे और ये आपस में ही दूसरे के बहकावे में आ गए थे। हमारी सरकार ने शिक्षा को महत्व को समझा और लोगों तक शिक्षा पहुँचाने पर जोर भी दिया गया, परंतु अभी भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। हमारा सर्वप्रथम प्रत्यंत प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाए जाने पर है और प्राथमिक स्तर पर स्कूल जो है छोड़ने वाली संख्या बढ़ते रहने के कारण 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में अनपढ़ों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। देखिए दोस्तों, आज के समय कहते हैं ना शिक्षा व्यक्ति कैसे ग्रहण करना पसंद करेगा। कहते हैं अगर घर में अगर आप खाने वाले हो, माता पिता भाई बहन हैं,
तो कहते हैं व्यक्ति अगर 8वीं 9वीं पढ़ता नहीं है कि उनको जो है घर में जो दबाव सी महसूस होने लग जाता है। कारण क्या है? महंगाई। अब देखिए, शिक्षा आप ग्रहण नहीं भी करोगे फिर भी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर सकती हो। कहते हैं पेट भरता है ना तभी शिक्षा भी अच्छा लगता है, जब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो शिक्षा भी आपको बेकार चला जाएगा। तो सरकार को कहते हैं ये तो उन्होंने प्रावधान कर दिया कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इवन कि बच्चों को मिड मील के तहत भोजन भी दोपहर का मिलता है, लेकिन उन्होंने तो दोपहर का खाना दे दिया है। और सुबह शाम खाना कौन देगा? माता पिता। लेकिन माता पिता अगर कमाने जाते हैं तो उनका तनख्वाह ही उतना नहीं होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी पर तो है नहीं। सरकारी नौकरी पर तो कहते हैं बरसात किया जाता है पैसों को, न जाने कितने जो है शेड्यूल यहाँ पर लगा दी गई और कितने तरह के वेतन बना चुके होंगे। तो लेकिन प्राइवेट में तो ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ पर क्या होता है, आपको तो किया हुआ मजदूरी भी देने को तैयार नहीं होते ये बड़े बड़े ठेकेदार लोग सब। तो उनका पेट कैसे भरेगा? व्यक्ति 5 दिन से काम कर रखा होता है लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिलता है मजदूरी। और वो पुलिस स्टेशन पे अगर कंप्लेंट भी करते हैं तो कहते हैं वो बंदा ही वहाँ से भाग गया होता है। तो आप समझिए कि उनका पेट कैसे भरेगा। तभी माता पिता जो होते हैं इनको जो है रोजगार पे लगा देते हैं, कहीं काम धंधे पे लगा देते हैं। तो ये कहते हैं हमारा जब तक सिस्टम कहते नहीं सुधरेगा ना तब तक कहते हैं हमारा देश प्रगति नहीं होगा, सदैव प्रगतिशील ही रहेगा। क्योंकि कुछ लोग जो है ये नहीं चाहते कि भारत देश जो है विकसित बन जाए, क्योंकि उनका मकसद ये है कि अनपढ़ लोगों को मैन्युफैक्चर करना और अपना जो है कुर्सी को बचाए रखना। तो ये कोई आम जनता नहीं कर रही है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। कि देखिए दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है महंगाई। अगर आज के समय आप देख लोगे ना तो एक किताब भी खरीदना आपके लिए सर दर्द से कम नहीं बनेगा। मैंने बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो किताब खरीदने के लिए भी आनाकानी करते हैं, क्योंकि इतनी महंगी है। सरकार ने बेशकली जो है 8वीं क्लास तक बच्चों को किताब भी फ्री दे दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बात को जो है 2-4 वर्ड नहीं कहता हूँ। तो क्या सरकार की यही मंशा है कि बच्चे 8वीं तक ही पढ़े? क्या 8वीं तक पढ़ने, आपको क्या लगता है कि 8वीं तक बच्चे को पढ़ा देने से क्या वो बहुत शिक्षित हो जाते हैं? कहते हैं जब वोट देने का अधिकार 18 साल है, जब वो मतलब सोच विचार सकते हैं, तो 8वीं तक क्या वो पढ़ के बहुत समझदार बन जाते हैं, बहुत एक्टिव बन जाते हैं। अब ये भी आप कहोगे कि माता पिता नहीं है। अरे माता पिता तो है, मैं कहा, लेकिन मैंने कहा ना आज महंगाई ने उनको कमर तोड़ दिया है। आज सोचते हैं कि बच्चों को मैं किताब खरीदूंगा, इससे अच्छा है कि उनको भोजन दे दूं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, सरकार को गंभीर से सोचने की आवश्यकता है। उसके पश्चात देखा जाए तो 1986 की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता योजना एवं ऑपरेशन जो है ब्लैक बोर्ड जैसे जो है अभियान शुरू किया ताकि साधारण लोगों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचा जा सके। देखिए ब्लैक बोर्ड जो भी थी मिशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। वो जो है बचपन से शिक्षा से वंचित रह गए, उन्हें शिक्षित करने के लिए सरकार तथा कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने विशेष प्रयत्न से रात्रि पाठशाला और व्याक शिक्षा केंद्र भी खोले गए। कहते हैं गांव में जब ये मिशन चली थी तो धड़ल्ले से व्यक्ति पढ़ भी रहे थे, लेकिन अभी देखोगे तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। यहाँ कोई व्यक्ति कोई जो है बुजुर्ग पढ़ना नहीं चाहता है, और ये बहुत बड़ी विडम्बना है। कहते हैं ना ये सब कमजोरी ही तो है जिसकी वजह से ये जो होता है ठंडा पड़ जाता है। कोई चीज़ अगर आप देखोगे, जब स्वच्छता अभियान शुरू की गई थी तो मंत्री लोग हर जगह गली गली जा के लोगों में प्रचार करते थे, और इवन कि 2 मिनट के लिए झाड़ू पकड़ते तो फोटो खिंचवाते जरूर थे। तो उस समय स्वच्छता अभियान हर जगह चला था, लेकिन आप देखोगे कहीं स्वच्छता नहीं है। कहते हैं जब कई क्षेत्रों में जो है लिफाफा बंद करवाई गई, जब जानवरों के पेट से न जाने कितने लिफाफे के टुकड़े मिले तो सरकार बहुत चिंतित हुई और इसमें बैन लगा दिया। कहते हैं 2 महीने तो लोगों को पन्नी नज़र तक भी नहीं आई, लेकिन कहते 2 महीने के बाद पन्नी तो हर क्षेत्र में मिलने लग गई। बीच बीच में सरकार ने कोशिश भी किया 1-2 दिन के लिए कि लिफाफा बैन है, और जब भी एक छोटे से गरीब के पास अगर लिफाफा भी मिल जाता था तो वो 500 के पत्ता ऐसे ही काट देते थे। तो आप समझिए ये कैसी रूल रेगुलेशन बनाई गई है जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। कुछ बनाए तो रूल जाते हैं, लेकिन उस पर जो है अमल नहीं हो पाता है, बहुत अधूरे तरीके से अमल होता है। तभी मैं कहता हूँ ना, कोई भी काम अधूरा ना छोड़ो। अधूरा काम सदैव खतरनाक होती है और उससे किसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे आप भी अगर
इसको वीडियो को आधा देख के जो है लीव कर जाते हो, आगे के नहीं देखते हो, तो आपका भी जो ज्ञान अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। इससे अच्छा आप 9 वीडियो देखते तो ही अच्छा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। अधूरा शिक्षा भी बच्चों के लिए खतरनाक ही सिद्ध होता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी आपके लिए। तो यही बात यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा की व्यापक का उद्देश्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था तथा कई मुक्त विद्यालय स्थापित किए गए। 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 2002 में 6वीं सेवा संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे धारा 21A के अंतर्गत नीति निर्देश सिद्धांत के स्थान पर मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। उसके पश्चात जो है बाल मजदूरी। देखिए, कहते हैं नीति निर्देश सिद्धांत के अनुसार बच्चों को स्वास्थ्य रूप से विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। बच्चों को शोषण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार के बारे में आपने पढ़ा है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के जो है रोजगार में नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, लेकिन कहते हैं प्रतिबंध सिर्फ प्रतिबंधित थी, हर जगह बच्चे कार्य जरूर कर रहे थे। इस प्रावधानों के बावजूद जो है वांछनीय परिणाम नहीं मिल पाया। अधिकांश मामलों में बाल मजदूरी को समाप्त करने की दिशा में माँ बाप की दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वे अपने बच्चों को कोई भी काम करके पैसा कमाना तो परिवार के आय में योगदान करने के लिए विवश करते हैं। देखिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि माता पिता बच्चों को काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए विवश करते हैं, परिवार के आय में योगदान करने के लिए विवश करते हैं। मैं बहुत से गरीब बंदों से मिला हूँ, वो यही बात कहते हैं कि भाई हमारे पेट भरने के लिए पैसे नहीं, तो बच्चों को मैं स्कूल क्यों भेजूँ, कैसे भेजूँ? तो क्यों? मैंने पूछा क्यों है भाई ऐसा? तो वो साफ शब्दों में यही बात बोलते हैं कि महंगाई तो कमर तोड़ चुकी है व्यक्तियों की, आम गरीबों की तो कहते हैं महंगाई ने इतनी दुर्दशा खराब कर दिया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इवन कि अगर आप भी बाजार चले जाओ, अगर 100 रुपया लेके जाओ तो आपका थैला क्या, आपके एक दो ही सामान आएंगे। तो कहते हैं बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो गया है। तो ये सब बातें जो है उनके माइंड में ज़रूर रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर देखोगे तो सरकारी मिशनरी जो है कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी जो है हमें देखने को मिलता है, बाल मजदूरी भी देखने को हमें मिलता है। और आय के वजह से नहीं जो है परिवार में माता पिता जो है विवश हो चुके हैं। इच्छा शक्ति कमी के अतिरिक्त निर्धनता और सामाजिक कलंक तथा समस्याओं के निराकार में बाधक भी है। जब तक इस सामाजिक चुनौती को समाप्त करने के लिए जागरूकता और इच्छा शक्ति अंदर पैदा नहीं होती है, सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों में किए गए प्रयास निरर्थक साबित ही होंगे। इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के जो है 2020 तक सपना तभी साकार हो सकती है अगर जब देश के भविष्य बच्चे सुरक्षित एवं शोषण मुक्त हो। बच्चों को अपने बचपन के अंदर ही शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये कथन जो था हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के था, जिन्होंने ये देखा था कि 2020 तक जो है ये सपना जरूर साकार होगी, लेकिन देखा जाए तो उनका सपना अधूरा ही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है महिला की स्थिति। देखिए, कहते हैं भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता है और माँ की स्थिति उससे गौण होती है। ऐसी स्थिति में महिला की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोरी हो जाती है। कहते हैं कठोर सामाजिक प्रथाएं एवं धार्मिक नीति जैसे पर्दा एवं दहेज के कारण भी महिलाओं को काफ़ी हद तक जो है भुगतना ही पड़ता है। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल महिलाओं की संख्या जो थी कहते हैं 49 करोड़ थी और 57 लाख थी, जो कि कुल जनसंख्या का कहते हैं 48.3% ही थी। हमारे संविधान में महिलाओं की स्थिति में उत्थान एवं शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देश तत्वों द्वारा बल दिया गया। उन्हें आजीविका के साधन तथा पुरुषों की तरह सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का भी अवसर प्राप्त हुआ। महिला कामगारों के स्वास्थ्य सुविधाएं एवं प्रसूति के दौरान अवकाश की सुविधा भी दी गई। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि जो प्रसूति के दौरान जो है इन्होंने काफ़ी जो है अवकाश दिया। ये बहुत भी सरकार के जो है कहते हैं काफ़ी अच्छा जो था नीति थी। कहते हैं मौलिक कर्तव्य भारत के हर नागरिकों को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुछ भी करने से रोकता है। विभिन्न अधिनियम एवं न्याय के निर्णय ने महिलाओं की प्रतिष्ठा स्थापित की है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पारिवारिक संपत्ति में उनके हिस्सा देने के उपाय भी किए गए हैं। दहेज के लिए दुल्हनों को जलाया जाना, पत्नियों का प्रताड़न, सती जैसी निष्ठुर प्रथाओं के उन्मूलन के लिए कानून बनाए भी गए हैं। कन्या वध, भ्रूण हत्या, लड़कियों के प्रति भेदभाव, बाल विवाह एवं प्रतिबंधित ऐसे उपाय हैं जिससे महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार तो हुई है। महिला सशक्तिकरण के लिए
विधान में संविधान के जो है 73वें और 74 में संशोधन द्वारा पंचायतों और जो है नगर पालिकाओं के महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित भी की गई है। संसद एवं राज्य विधायकों में इसी तरह के जो आरक्षण का प्रस्ताव भी किया गया था। यद्यपि कुछ हासिल भी किया जा चुका है, फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना उद्देश्य समाप्त करने के लिए बहुत करना भी बाकी